stand proudly in defense of liberty, and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر اسلامی دہشت گردی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ 22 ستمبر کی بات ہے، امریکی شہر ہیوسٹن میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے اعزاز میں ایک پروگرام ہو رہا تھا، جہاں امریکی صدر ٹرمپ نے بھی شرکت کی اور اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہم دنیا سے انتہا پسند اسلامی دہشت گردی کے خاتمہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے اسلامی دہشت گردی کا جملہ کوئی پہلی مرتبہ استعمال نہیں کیا ہے، لیکن آج خبر در خبر میں ہم آپ کو بتانے آئے ہیں کہ اگر واقعی دہشت گردی کو کسی مذہب سے جوڑا جا سکتا ہے، اگر دہشت گردی کو مذہب کے نام پر ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، تو پھر اسلامی دہشت گردی ہی کیوں؟ عیسائی دہشت گردی کیوں نہیں؟ ہندو دہشت گردی کیوں نہیں؟ برہمن دہشت گردی کیوں نہیں؟ یہودی دہشت گردی کیوں نہیں؟ کیونکہ دہشت گرد تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، تمام مذاہب کے ماننے والے دہشت گردی کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں، اور خبر در خبر میں آج ہم یہی پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کس پر کون حملہ کر رہا ہے، کون سب سے بڑا خونخوار قاتل اور دہشت گرد ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر شمس تبریز قاسمی کے ساتھ۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی ان دنوں امریکہ میں ہے۔ وہ 21 ستمبر سے 27 ستمبر تک نیو یارک میں رہیں گے، جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ان کی ملاقات طے ہے اور کئی سارے لیڈروں سے ملاقات کریں گے۔ اسی سفر میں کل یعنی 22 ستمبر کو ہندوستان امریکی شہر ہیوسٹن میں یہ پروگرام رکھا گیا جس کا نام تھا ہاؤڈی۔ ہاؤڈی کا مطلب ہوتا ہے ہاؤ ڈو یو ڈو، اور اس کو ویلکم یا سلام کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ پردھان منتری نریندر مودی متعدد ملکوں میں جاتے ہیں تو اپنے اعزاز میں انڈین لوگوں سے یعنی RNI سے ایک پروگرام کرواتے ہیں، لندن میں ہو چکا ہے، اور امریکہ میں تیسرا اس طرح کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ان کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی شرکت کی۔ کہا جا رہا ہے کہ 50,000 سے زائد کا مجمع تھا، یعنی 50,000 سے زائد ہندوستانی وہاں موجود تھے جنہیں امریکی شہریت حاصل ہے۔ میڈیا نے اس کو دکھایا اور ہندوستانی میڈیا میں جم کر اس پر کوریج ہو رہی ہے، لیکن ایک دوسرا سچ میڈیا نے نہیں دکھایا کہ جس اسٹیڈیم میں نریندر مودی کی شان میں جلسہ ہو رہا تھا، اس اسٹیڈیم کے باہر کشمیری، سکھ اور متعدد ممالک کے لوگ نریندر مودی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور کشمیر کے مسئلے کو اچھال رہے تھے کہ کشمیر میں 50 دنوں سے ہیومن رائٹس کی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، پامالی ہو رہی ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے ہیں ہاؤڈی مودی پروگرام کی۔ اس ہاؤڈی مودی پروگرام میں مودی کے ساتھ ٹرمپ نے بھی شرکت کی اور انہوں نے 23 منٹ پر مشتمل ایک خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے سرحدی معاملات اور دہشت گردی جیسے ایشوز پر بات چیت کی، ہندوستان کے ساتھ گہرے تعلقات کا تذکرہ کیا، نریندر مودی کو ہندوستان کے لیے کہ غیر معمولی وزیر اعظم کہا، اور اسی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم دنیا سے انتہا پسند اسلامی دہشت گردی کے خاتمہ کے لیے پرعزم ہیں۔ انڈین فوجی اور امریکی فوجیوں کو سلام جو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ اسلامی دہشت گردی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ 2016 میں جب وہ صدارتی الیکشن کے لیے کیمپین چلا رہے تھے تو اس دوران انہوں نے اسلام کے خلاف بہت زیادہ بات کی، اسلام کے خلاف حملہ کیا، اسلام کے خلاف بکواس کی اور اسلام کو دہشت گرد مذہب قرار دیا، مسلم ممالک پر پابندی لگانے کی بات کی، یہاں تک کہ جب وہ جیت گئے اور صدر بنے تو اپنے پہلے فیصلے میں ہی انہوں نے کئی سارے مسلم ممالک کی پروازوں پر پابندی عائد کر دی۔ مسلم ممالک سے
आने वाली परवाज़ों की चेकिंग बढ़ा दी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि दहशत गर्दी कहाँ हो रही है और किन ममालिक में हो रही है। 2011 में 9/11 हुआ और उसका इल्ज़ाम लगाया गया मुसलमानों पर, अलकायदा पर इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन अब तक साबित नहीं हो सका है कि वाकई अलकायदा उसमें मुलव्विस थी। अमेरिका ने तालिबान पर हमला किया और 18 सालों बाद अमेरिका तालिबान से मुज़ाकरात करने पर मजबूर है। जिस तालिबान को अमेरिका ने दहशतगर्द करार दिया वही तालिबान पहले उनके दोस्त थे और अब उनके साथ मुज़ाकरात करने पर आमादा है। अभी फ़िलहाल मुज़ाकरात मुलतवी होगी, लेकिन होकर के रहेगी क्योंकि अमेरिका अफ़गानिस्तान में शिकस्त खा चुका है। तो जो लोग अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपनी ज़मीन के लिए जंग लड़ रहे हैं, तो उसे अमेरिका ने दहशतगर्द करार दिया। कहा जाता है कि मुसलमान दहशतगर्द हैं। आखिर मुस्लिम ममालिक दहशतगर्दी से खुद दो चार हैं। अफ़गानिस्तान में हमला होता है, इराक़ में हमला होता है, यमन तबाह बर्बाद है, लीबिया तबाह बर्बाद हो गया, शाम खाना जंगी का शिकार है। हमला आवर भी मुसलमान है, जिन पर हमला हो रहा है वो भी मुसलमान है, मारने वाले मुसलमान हैं, मरने वाले मुसलमान हैं, और इसी बुनियाद पर मुसलमानों को दहशतगर्द कहा जा रहा है। असल दहशतगर्द वो हैं जो इन हमला आवर को हथियार फराहम कर रहे हैं, और मुतअद्दिद रिपोर्ट आ चुकी है कि इन हमला आवरों को हथियार फराहम अमेरिका कर रहा है, इजराइल कर रहा है। तो आखिर इजराइल और अमेरिका असल दहशतगर्द है जो इन्हें हथियार फराहम कर रहे हैं। यूरोप जो ख़ुद को पुरअमन मुल्क कहता है, जिसका दावा है कि हमारे यहाँ मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी है, हर मज़ाहिब का एहतराम है, यहाँ किसी मज़हब पर पाबंदी हासिल नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी इज़हार राय की आज़ादी, उन मुल्कों में सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर हमला होता है, मस्जिदों पर हमला होता है, मदरसे पर हमले होते हैं, इस्लामिक सेंटर पर हमले होते हैं। 15 मार्च 2019 यानी क्राइस्ट चर्च का हमला तो आपको याद ही होगा कि एक ईसाई दहशतगर्द ब्रिंटन ट्रेंट ने मस्जिद पर हमला किया। उस वक्त हमला किया जब मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे, जुमा का दिन था, और 50 से ज़ायद मुसलमान बैक वक्त शहीद हो गए। 2 मस्जिद पर हमला हुआ। उस हमले को न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डन ने दहशतगर्दाना हमला कहा, बरतानिया की वज़ीर आज़म ने उसे दहशतगर्दाना हमला कहा, और वो हमलावर ईसाई था। उसने बाज़ाब्ता लिख रखा था कि हमने मजहबी बुनियाद पर हमला किया है। तो क्या ब्रिंटन ट्रेंट को कहा जाए कि ईसाई दहशतगर्द था और ईसाई मज़हब दहशतगर्दी का मज़हब है? दुनिया से जिस तरह ट्रंप ये कह रहे कि इंतहा पसंद इस्लामी दहशतगर्दी का ख़ात्मा नागुज़िर है, तो ब्रिंटन ट्रेंट ने साबित कर दिया कि दुनिया में ईसाई इंतहा पसंद भी पाए जाते हैं और ईसाई इंतहा पसंद दहशतगर्द का ख़ात्मा ज़रूरी है। और क्राइस्ट चर्च तो एक नमूना है। हम आपको बता रहे हैं कि यूरोप में कहाँ कहाँ हमले हुए हैं। यूरोप का बहुत अहम शहर जर्मनी माना जाता है। जर्मनी में सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं और हर साल वहाँ मस्जिदों पर और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमला की तादाद बढ़ती जा रही है। DW जो वहाँ का एक अखबार है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2017 में मुसलमानों के ख़िलाफ़ 950 हमले हुए हैं और उन हमलों में सिर्फ मस्जिद पर 60 हमले हुए हैं। 2018 में उससे भी ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमले हुए हैं। 2019 में भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमले जारी है। स्पेन जो एक आज़ाद मुल्क कहा जाता है और ये कहा जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा मजहबी आज़ादी है, वहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता एक साल में 546 हमले हुए और उसमें से 50 हमले मस्जिदों पर हुए हैं। बरतानिया के बारे में कहा जाता है कि बरतानिया एक पुरअमन मुल्क है, वहाँ मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी है, लेकिन आपको जानकर अफसोस होगा कि बरतानिया में भी मुसलसल मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं। एक अखबार है स्टेटमेंट, उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि 2013 से 2017 तक बरतानिया में 167 यानी 167 मस्जिद पर हमले हुए हैं। इन हमलों में मुतअद्दिद मुसलमान शहीद हुए हैं, मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए हैं और 2018 और 2017 में भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये हमला जारी है। अभी पिछले साल ये रिपोर्ट आई थी कि नमाज तरावीह के दौरान एक मस्जिद पर वहाँ के दहशतगर्दों ने हमला किया और ये सारे हमलावर कौन थे? ईसाई थे। और ये हमला दहशतगर्दाना है तो फिर सिर्फ इस्लाम दहशतगर्दी का मज़हब नहीं बल्कि ईसाई भी दहशतगर्दी का मज़हब है। ईसाई मज़हब के मानने वाले दहशतगर्दी कर रहे हैं। अमेरिका ख़ुद को मजहबी आज़ादी का अलंबरदार कहता है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर से दहशतगर्दी के ख़ात्मा की बात करते हैं, लेकिन अमेरिका में भी सबसे ज़्यादा दहशतगर्दाना वाक़यात पेश आ रहे हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ वाक़यात पेश आ रहे हैं। दर्जनों मस्जिद में और वहाँ की दर्जनों रियासत में मस्जिदों पर हमले हुए हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमले हुए हैं और ये सब के सब हमला करने वाले ईसाई होते हैं या यहूदी होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कि जो रियासतें हैं, ख़ासतौर पर वाशिंगटन जो वहाँ की राजधानी है, इसके अलावा कैलिफोर्निया, ओहानियो, टेक्सास, फ्लोरिडा, वर्जिनिया, मिशिगन, न्यू जर्सी जैसे
शहरों में मुसलसल मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमले हुए हैं, मस्जिदों पर हमले हुए हैं और मुसलमानों को टारगेट किया गया है। अभी 2 माह कबल की रिपोर्ट है कि एक दहशतगर्द ने फायरिंग की और एक मस्जिद पर फायरिंग कर दी, कई मुसलमान उसमें शहीद हो गए, कई लोग ज़ख्मी हुए। तो ये सारे के सारे हमलावर मजहबी बुनियाद पर करते हैं और वो उनका मज़हब क्रिश्चन है, तो इसका मतलब ये कह दिया जाए कि क्रिश्चन मज़हब भी दहशतगर्दी का मज़हब है, वहाँ से भी दहशतगर्दी को फ़रोग़ मिल रहा है। यलगारिया यूरोप का बहुत मशहूर मुल्क है और कहा जाता है कि वहाँ मुकम्मल मजहबी आज़ादी है, लेकिन पिछले साल ही एक तारीख़ी मस्जिद पर हमला करके उसे नज़र आतिश कर दिया गया, यानी मस्जिद को जला दिया गया और वहाँ के मुसलमानों को भी शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फ़्रांस दुनिया का एक बड़ा मुल्क कहलाता है, आलमी जंग में उसका नुमाया रोल था, लेकिन उस फ्रांस में भी मजहबी आज़ादी के नाम पर मुसलमानों को दबाया जा रहा है। पिछले साल वहाँ 2 मस्जिद पर हमला हुआ। पेरिस में जब मस्जिद पर हमला हुआ तो मुसलमानों ने शिकायत की, दुनिया भर में एहतजाज हुआ, तो फ्रांस की हुकूमत ने मुसलमानों को सिक्योरिटी देने के बजाय, दहशतगर्दों पर लगाम लगाने के बजाय 7 मस्जिदों पर ही लगाम लगा दिया, 7 मस्जिदों पर पाबंदी लगा दी और कह दिया गया कि यहाँ ऐसे ऐसे वाक़ात हो रहे। इससे बचने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि मस्जिदें बंद कर दी जाए। तो ये फ़्रांस का सेकुलरिज़म मॉडल है, जहाँ मस्जिदों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय वहाँ मस्जिदों पर पाबंदी ही लगा दी गई। और ये सारे हमलावर कौन थे? ईसाई थे। इसका मतलब ये मान लिया जाए कि ईसाई मज़हब भी दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है। और ट्रंप की ज़ुबान में कहे तो जिस तरह इंतहा पसंद इस्लामी दहशतगर्दी का ख़ात्मा ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ईसाई इंतहा पसंदी और इंतहा पसंद ईसाई दहशतगर्दी का ख़ात्मा ज़रूरी है। कनाडा में भी दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया। कनाडा का शहर क्यूबेक है, वहाँ एक दहशतगर्द ने वहाँ के इस्लामिक कल्चर सेंटर पर हमला कर दिया। उस सेंटर में 50 से ज़ायद मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे, दौरान नमाज हमला कर दिया, जिससे मुतअद्दिद मुसलमान ज़ख्मी हो गए, कई एक की मौत भी होगी। तो चंद ममालिक की हमने फहरिस्त बताई। यूरोप के ममालिक जो ख़ुद को पुरअमन ममालिक कहते हैं, मजहबी आज़ादी के अलमबरदार कहते हैं, सेकुलर अक़दार के हामिल ममालिक कह जाते हैं, वहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमला हुआ, मस्जिदों पर हमला हुआ, इस्लामिक सेंटर पर हमला हुआ। इन ममालिक में कुरान करीम की बेहुरमती की जाती है, कुरान करीम को नज़र आतिश किया गया है। और ज़रा जायज़ा लीजिए मुस्लिम ममालिक का जहाँ हमला होता है, मुस्लिम ममालिक में एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान पर हमला करते हैं। आपने नहीं सुना है कि अफ़गानिस्तान में किसी मंदिर को तोड़ा गया, आपने नहीं सुना है कि इराक़ में किसी मंदिर पर हमला हुआ, किसी चर्च पर हमला हुआ, किसी गिरजाघर पर हमला हुआ, बल्कि हम मुसलमान ही मुसलमान पर हमला कर रहे हैं और इसकी वजह से सारे दहशतगर्द बन गए हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका में, यूरोप में मुसलमानों पर, उनकी मस्जिदों पर, उनके सेंटर पर हमले हो रहे हैं। तो इसके बावजूद इस दहशतगर्दी को रोकने की कोई भी क़यादत बात नहीं कर रही है। हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान का ही जायज़ा ले लीजिए कि यहाँ आए रोज़ मुसलमानों पर, दलितों पर और जो दूसरी माइनॉरिटीज़ है उस पर हमला होता है। मुसलमानों की मुसलसल मॉब लिंचिंग हो रही है, दूसरी कम्युनिटीज़ की मॉब लिंचिंग हो रही है। और मॉब लिंचिंग करने वाले कौन है? अक्सरियती मज़ाहिब के लोग हैं, यानी वो लोग हैं जो भगवा पर यकीन रखते हैं, या जो कह लीजिए कि जो ख़ुद को हिंदू कहते हैं, वो मज़हब के नाम पर हमला करते हैं। जय श्री राम का नारा लगाकर बेगुनाहों को मारते हैं, ज़बरदस्ती वंदे मातरम बुलवाते हैं, जय श्री राम का नारा लगवाते हैं और ना बोलने की पदाश में मारते हैं, कत्ल कर देते हैं। तो ये दहशतगर्दी, अब इस दहशतगर्दी को कहिए कि हिंदू दहशतगर्दी है, लेकिन इस दहशतगर्दी पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे पहला कत्ल उस शख्स का हुआ जिसने हिंदुस्तान को आज़ादी की दौलत से हमकिनार किया, यानी बाबा कौम महात्मा गांधी का कत्ल हुआ। और उसका कातिल नाथूराम गोडसे है, जो आरएसएस का मेंबर था, आरएसएस का आदमी था। और नाथूराम गोडसे हिंदुस्तान आज़ाद का पहला दहशतगर्द है, लेकिन उसे कोई दहशतगर्द नहीं कहता। कोई इस दहशतगर्दी यानी जो भगवा दहशतगर्दी है उस पर बात नहीं की जाती। 1984 में सिखों का कत्ल आम किया गया और उसके कत्ल करने वाले कोई मुसलमान नहीं थे। इंदिरा गांधी का कत्ल किसी मुसलमान ने नहीं किया था। इस तरह के जितने वाक़ात पेश आते हैं, गुजरात में मुसलमानों का कत्ल आम हुआ और कत्ल आम करने वाले कौन थे वो आप सब जानते हैं। इसके बावजूद सिर्फ इस्लामी दहशतगर्दी की इस्तिलाह क्यों? अगर दहशतगर्दी का कोई मज़हब है, अगर ट्रंप इंतहा पसंद इस्लामी दहशतगर्दी, इस्लामिक टेररिज़म इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर क्रिश्चियन टेररिज़म क्यों नहीं, हिंदू मत टेररिज़म क्यों नहीं, बुद्धिस्ट दहशतगर्दी क्यों नहीं? आपको याद होगा कि श्रीलंका में मुसलमानों पर किस तरह जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। श्रीलंका में एक चर्च पर हमला हुआ, वो हमला किसने किया कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा दिया गया, उसकी एक तंजीम को बैन कर दिया गया और उसकी पादाश में 100 से ज़ायद मुसलमानों के घर को लूट लिया गया है, उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया गया है, मुतअद्दिद मुसलमानों को शहीद कर दिया गया और ज़ख्मी होने वालों की तादाद तो अनगिनत है। और ये वाक़या इसी साल यानी 2019 का है। तो दुनिया
भर में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जहाँ भी मुसलमान अक़लियत में हैं वहाँ अक्सरियती मज़ाहिब के मानने वाले मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। सरकार मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी देने में नाकाम है। इसके बावजूद मुसलमानों के मज़हब यानी इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है। मुस्लिम ममालिक में किसी मंदिर पर, किसी चर्च पर हमला नहीं हो रहा। मुसलमान ख़ुद अपने इलाक़ों पर, अपनी मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं। इसके बावजूद मुसलमान दहशतगर्द कहला रहे हैं। तो क्या अब ये वक्त आ गया है कि जिस तरह इस्लामी दहशतगर्दी किस तरह इस्तेमाल की जा रही है, दूसरे मज़हब को भी दहशतगर्दी से जोड़कर कहा जाए? बुद्धिस्ट दहशतगर्दी, हिंदू दहशतगर्दी, ईसाई दहशतगर्दी, यहूदी दहशतगर्दी, या फिर मुसलमान हमेशा अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का दिफा ही करते रहें? आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि आप इस फ़लसफ़े पर यकीन रखते हैं कि दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता, कोई भी दहशतगर्द हो सकता है, या फिर आप ट्रंप के फ़लसफ़े पर यकीन रखते हैं जो कहते हैं इस्लामी इंतहा पसंदी, इस्लामी दहशतगर्दी? खबरदार खबर में आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।